everyone. I am Sunaina, your host for this session. I am pleased to welcome you all to the fifth season of My Mic, where voices resonate, ideas ignite, and talent shines. Swimming is not just about moving through water, it's about navigating through life's obstacles. Today, we are honored to have amongst us an extraordinary individual whose achievements in swimming have inspired countless people. His relentless dedication and incredible accomplishments are a testament to his unwavering spirit. I now request the technical team to kindly play the VT. The small town of Rewa, Madhya Pradesh, where his journey began to the pinnacle of triumph, meet Satyendra Singh Lohia, the unstoppable force of nature who has redefined the boundaries of human potential. Born on August 25, 1988, with a physical disability that could have defined him but never deterred him, Satyendra's life is a testament to the power of courage, resilience, and determination. Growing up in a humble background, Satyendra's early life was marked by challenges but also by the unwavering support of his family, who instilled in him the belief that he was capable of achieving anything he set his mind to and achieve what he did. With every stroke of his swim, every pedal of his cycle, and every beat of his heart, Satyendra has shattered stereotypes, inspired millions, and redefined the limits of what's possible. From his first swim at the age of 15 to his remarkable journey of completing the Divyang Empowerment Khelo Yatra, a 4,320 km cycle journey from Kanyakumari to Lal Chowk, Kashmir in 19 days. Satyendra's story is a symphony of triumphs, a canvas of colors that paints a picture of hope, inclusivity and empowerment. With a national award, a Tenzing Norgay National Adventure Award and a Padma Shri to his name, Satyendra's achievements are a testament to his unwavering commitment to excellence. But Satyendra's true achievement lies not in his accolades, but in his ability to inspire, to motivate and to empower. He reminds us that our limitations are mere illusions and that our true potential lies beyond the boundaries of what's possible. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming the unstoppable Satyendra Singh Lohia to My Mic Season 5 2024, organized by RNS MBA. I now request Shri Unnikrishna Menon from the Rotaract Club of RNSIT to kindly come to the stage and hand over a sapling welcome to an indomitable spirit and value of Shri Satyendra Singh Lohia. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the unwavering spirit of this great personality who is here with us to address us during My Mic Season 5, powered by RNS MBA. I request the audience to kindly settle down as we are about to hear a journey, one of resilience and one of determination, courage and achievement. I now request Shri Satyendra Singh Lohia sir to address the gathering. हेलो, सभी को नमस्कारम। कैसे हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनएस इस संस्थान के द्वारा मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर मुझे सुनने के लिए इस कॉलेज इंस्टीट्यूट के सभी छात्र छात्राएं और सभी अभिभावकगण और सभी स्टाफ के सदस्य सुनने के लिए आए, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी स्टाफ के। जैसा कि मुझे नागराज जी ने बताया कि कार्यक्रम कॉलेज में है, आपको आना है। मैंने हमेशा से ही बच्चों में अगर कहीं भी मेरे जाने से, मेरे उपस्थित होने से
अगर किसी में प्रेरणा और आगे बढ़ने की सोच जगती है तो हमेशा मैं स्टूडेंट हो जो भी जिन्हों को प्रोत्साहन की जरूरत है, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूं कि अगर मैं कहीं कि मेरा जो कार्य, जो मेरा संघर्ष है जीवन का, मैं लोगों को बताकर अगर उनमें कुछ उत्साह और उम्मीद बढ़ती है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और साथ में आरएनएस इंस्टीट्यूट संस्थान के द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया गया है माई माइक, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही प्रोत्साहित अपने आप को कार्य, ऐसे कार्यक्रम करने के ही कारण एक प्रेरणा आती है। जब दूसरों के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में बताया जाता है कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होता है। जिस तरीके से एक छात्र एक पौधे के समान होते हैं, जब पौधा एक दिन में फल नहीं देता, उसको डेली के डेली हमें सींचना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी प्रतिभा हो, छात्र हो या अन्य किसी संस्थान में कार्य करने वाले एम्प्लॉई हों, उनके लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे के भी जीवन में प्रोत्साहन के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं 70% दिव्यांग हूँ, मगर मैं कहता हूँ दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज द सुपर पावर हैव ए मेड टू माई लाइफ। डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। किसी को अगर शारीरिक रूप से कमी है तो मैं कहता हूं वो कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी होती है व्यक्ति के अंदर एक सोच की, अच्छा सोचने की, उसके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं है, कुछ करने की एक शक्ति नहीं है। इसीलिए किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास, दृढ़ संकल्प और देश समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा होनी चाहिए। जैसा कि हमारे देश के ग्रेट लीडर महापुरुषों ने, उन्होंने छोटे छोटे संसाधनों में, छोटे छोटे रिसोर्सेस में अपने आप को कभी डिमोटिव नहीं होने दिया, हीन नहीं होने दिया। अपने आप को कम से कम साधनों में अपने देश समाज के लिए अपने हाथ कर गए और वो हमारे लिए प्रेरणा का कार्य हैं। कभी कभी मैं जाता हूं, बहुत से लोग मेरे से बोलते कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, कितना नेशनल में। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक कभी स्टूडेंट ये बोलते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा फार्मर हैं, फाइनेंशियली रिसोर्सेस नहीं हैं, मैं भी एक गांव से निकला हुआ छात्र हूं, चंबल नाम सुना होगा, भिंड से आता हूं, जिसकी मैंने पहचान बदलने की कोशिश की है। चंबल को डाकुओं के नाम से जाना जाता था, मैंने उस पहचान को बदला, कहा कि डाकुओं के नाम से नहीं, ये खेल के नाम से जाना जाएगा। तब कहीं जाकर मैंने 29 मेडल्स नेशनल में अचीव किए, 3 इंटरनेशनल में पदक हासिल किए। उसके बाद आपने नाम सुना होगा इंग्लिश चैनल, आप हाथ खड़ा करके बताएंगे इंग्लिश चैनल क्या है, कौन कौन जानता है? क्योंकि कभी कभी सर कंफ्यूज होता है, इंग्लिश चैनल कोई वो टीवी चैनल वाला समझ लेते हैं। इंग्लिश चैनल इज द लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर सी स्विमिंग इन द टेम्परेचर आर 8 and 9 डिग्री। वो भी अपनी टीम के साथ 2018 में 12 आवर्स में उसको क्रॉस किया। कैटेलिना चैनल जो यूएस में है उसको क्रॉस किया। नॉर्दर्न आइलैंड में सबसे जो ठंडा पानी होता है
36 किलोमीटर स्कॉटलैंड टू नॉर्दर्न आयरलैंड अपनी टीम के साथ वो उसको भी क्रॉस किया, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार का मैं पहला दिव्यांग तैराक हूं जिसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार सामाजिक न्याय विभाग का सोशल मिनिस्ट्री ने भी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू साहब ने भी सम्मानित किया। और इस साल भारत सरकार ने हर व्यक्ति, हर प्रतिभा का एक तमन्ना होता है पद्मश्री सिविलियन अवार्ड, 4th सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। मैं कहता हूं ये सम्मान मेरे को ही सम्मान नहीं मिला, एक सोच को सम्मान मिला, एक जज्बे को सम्मान मिला, एक सपने को सम्मान मिला। और आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, एक सोच कि जो लोग कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, मैं कहता हूं दिव्यांग व्यक्ति को सहानुभूति की नहीं, सम्मान और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो दिव्यांग व्यक्ति भी दुनिया का जो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो कर सकता है, तो दिव्यांग भी कोई पीछे नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अभी 8 तारीख को पैरालंपिक्स खत्म हुए हैं, फिनिश हुए फ्रांस में, 29 मेडल पहली बार भारत ने अचीव किए हैं। आप कहते हैं आपने एक वीडियो और देखा होगा, क्योंकि अपने बारे में बताने से पहले दूसरों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। श्रीनगर की लड़की शीतल के बारे में सोचा बात, आर्चरी के लिए क्या आवश्यकता होती है? हाथ बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मत कर हाथों की लकीरों पर विश्वास, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। शीतल ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी कार्य करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं दिव्यांग हूं। हमेशा ये कहना चाहिए छुपा लेने दो उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो अंधेरे में जीने वाले लोग हैं। अंधेरा हमसे क्या लेंगे, जब आहत कर लिया इन अंधेरों को मेटने का, जोड़कर जुगनू को सूरज बना लेंगे। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। साथ में यहां पर मैं छात्रों को भी एक सलाह देना चाहता हूं, शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अगर किसी भी चीज की अगर जरूरत होती है तो शिक्षा से केवल एक व्यक्ति का ही जीवन सफल नहीं होता। एक व्यक्ति जब परिवार में सफल होता है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं, हम ही सफल होते हैं। जिस घर में जो भी प्रतिभा रहती है वो प्रतिभा सफल के साथ साथ उसका परिवार सफल होता है। जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ला सफल होता है। जिस गांव जिस जिले से बिलोंग करता है वो जिला सक्सेस होता है। और देश से जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता आप बेंगलोर से हैं, आप मध्य प्रदेश से, आप कर्नाटका से, तमिलनाडु से, ओनली फॉर सिटीजन इंडियन। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं और जब इंडिया की बात आती है तो मैं कहता हूं कि अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति के अंदर समर्पण होता है वो कभी भी हार नहीं मान सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे भी जीवन में भी बहुत ही निराशा, ये मेरी बचपन में प्रॉब्लम नहीं है। बचपन के कुछ टाइम बाद गांव में जन्म हुआ, बहुत से लोगों ने बोला कि आपकी जिंदगी तो वर्थलेस हो गई, कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो दिव्यांग व्यक्ति के, मैंने कहा कि मेरे पैर में ही तो प्रॉब्लम है, मगर मेरी सोच, दृढ़ संकल्प और कुछ करने का जो जज्बा है उसमें तो कोई दिव्यांगता नहीं है। हम लोग किसी भी बाहरी चीज को देखकर एनालाइज कर देते हैं कि वो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकता, मगर जो अनविजुअल पावर होती है, अपने अंदर
अनविजुअल पावर जो हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, कर भैया बले आपनी छोड़ बिरानी आस, और तेरे आगर नदी बहे तो मृत प्यास। अपने आप को विश्वास कीजिए। जब अपने आप पर व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके परिवार वाले भी विश्वास करते हैं, उसके आसपास वाले भी विश्वास करते हैं, उसका प्रदेश विश्वास करता है और उसका देश विश्वास करता है। जो अपने पर विश्वास नहीं करता उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। असफलता सफलता आती है, ऐसा नहीं है कि जीवन में जितने भी ग्रेट लीडर हैं उनके कहानी आप पढ़ लीजिए। मैं तो एक तुच्छ मात्र एक छात्र ही हूं, अभी आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूं। कभी भी ये नहीं किसी ऐसा कोई महापुरुष जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। ये संस्थान का भी जब स्थापना हुई होगी, इसको भी स्थापना करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े स्ट्रगल लगा होगा। ऐसा मैं ऐसा सोच रखता हूँ। कोई भी काम इतना बड़ा संस्थान आसान नहीं है। तो जीवन में हमेशा निराशा आए ये सोचना चाहिए, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यही सोचना चाहिए। लड़ाई जब अपन संघर्ष जीवन में आगे बढ़ते हैं, बैठने से कुछ नहीं मिलता। जो संघर्ष निरंतर करते रहते हैं उन्हें ही सफलता मिली है। और हमेशा जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते। होती सफलता उन्हें ही है, अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैंने कभी अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं। मैं कहता हूं मैं दूसरों से खुद आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं कभी दूसरों के सामने आप रोना रोगे तो दूसरा सहानुभूति के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। जब अपने व्यक्ति अपनी ताकत खुद बना लेता है तो देश उस पर गर्व करता है। जब आप अपनी ताकत को खुद को ही सोच लोगे कि नहीं मेरे को हमें अपने आप को बस विश्वास में लेना चाहिए। शिक्षा से केवल एक अपने शिक्षा वो चीज होती है जब आप उसमें 100 रुपए लगाओगे। ऐसा मैंने कभी एक अमिताभ बच्चन जी का वीडियो देखा था। 100 रुपए अगर आप लगाओगे तो 1000% उस पर डिविडेंड मिलता है। और शिक्षा आपको लास्ट कहीं आप फॉरेन में भी जाओगे तो शिक्षा ही आपकी माता होती है जो इसको आपको कम्युनिकेट करने में, आपको संरक्षण करने में करती। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ मैं कहूंगा खेल बहुत ही आवश्यक है। खेल केवल इस वजह से ही नहीं खेला जाता, केवल हमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। खेल इस वजह से नहीं खेला जाता कि भाई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। खेल इस वजह से भी खेला जाता है कि हमें जिंदगी को सही रूप में जी लेना ही सही खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी जब डेली हारता है डेली जीतता है तो उसे जीत और हार का पता ही नहीं पड़ता। जैसा कि हमने आज बहुत से स्टूडेंट, मैं कहता हूं बहुत से, जब हम पेपर में न्यूज में पढ़ते सुसाइड कर लेते हैं। एक एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं होती। एक एग्जाम में फेल होना कोई जिंदगी नहीं है, मगर आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है। बहुत दुख होता है जब कोई सुसाइड का मैं न्यूज पढ़ता हूं। क्यों? आप खिलाड़ी आप में एक डाटा अपवाद तो सब जगह है, खिलाड़ी कभी सुसाइड नहीं करता। कहीं भी नहीं सुना होगा कि किसी खिलाड़ी ने सुसाइड किया। उसका ये रीजन है कि डेली वो अपने टास्क को पूरा करता है, नहीं कर पाता है तो कल दोबारा से ट्राई करता है, दोबारा से ट्राई करता है, वो कर लेता है, अगले दिन फिर फेल होता है। तो खिलाड़ी का हार और जीत का एक खेल बन जाता है। तो वो जिंदगी में अगर अनसक्सेस मिलती है तो उसको भी एक्सेप्ट करता है, और अगर सक्सेस मिलती है तो उसको भी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता है। और जो हमेशा सक्सेस होते हैं तो कभी लाइफ में जब फेल होते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारे बहुत से छात्र सुसाइड कर लेते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि हमें 200 साल जीना है, 300 साल जीना है, 1000 साल जीना है, तब तो सुसाइड ठीक है। और कुछ ही तो टाइम है, उसे इंजॉय के रूम में जीना चाहिए। ये दैट इज अ ट्रुथ, ये सच्चाई है। तो फिर हम इसके लिए क्यों इतना तत्पर हों?
क्योंकि परेशानी जब हम इस पृथ्वी पर तब तक ही है, जाने के बाद हमारे शरीर को भी कोई परेशानी नहीं होती, फिर तो आराम से उसको भी कोई परेशानी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो भी छात्र हैं अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर सोचिए कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है। यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं मैं उनसे एक ही एडवाइस, क्योंकि स्पीच तो हम कितना भी मोटिवेट करें मगर जब तक व्यक्ति को खुद को मोटिवेट नहीं करेगा, जब खुद को आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं जगाएगा, तब तक व्यक्ति में कोई भी प्रोत्साहन नहीं हो सकता। मैं कहता हूं किसी भी कार्य करने के लिए अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाएंगे, अगर तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहुत से बहाने मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी IIT MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, हमेशा मन में ये सोचें, मैंने हमेशा सोचा कि मध्य प्रदेश से किसी ने भी इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं किया। अगर मैं इस कार्य को नहीं करता हूँ तो हमारे प्रदेश का नाम इसमें नहीं जुड़ पाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं हमें बड़ा सोचना चाहिए कि अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारा देश का विकास रुक जाएगा। अगर हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश के जो बढ़ने का जो आज का जो मॉडल जो है वो विकास रुक जाएगा। जब देश की बात आती है तो व्यक्ति में हमेशा प्रेरणा भरने के लिए अपनी प्रेरणा जीवन में प्रोत्साहित अपने आप हो सकता है। तो मैंने भी जीवन में बस एक ही बात सोची कि अपने आप को हमेशा ये समर्पण के साथ, लगन के साथ, हार जीत का अलग मैटर है मगर हमें अपने आप पर ये सोचना चाहिए कि हम कितना आगे कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनसे बस मैं जीवन में हमेशा अपने आप पर, जब आप किसी भी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो दूसरों को भी उस सक्सेस का बेनिफिट देना चाहिए। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर, अरे जिंदगी ऐसी जियो जो कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। मैंने भी ऐसी जिंदगी जीने का, मैंने कहा मैंने तो सफल हो गया मगर मेरे जैसे और जब तक व्यक्ति सफल नहीं होंगे, जैसा आप छात्र आप सक्सेस होंगे, आपके जैसे, आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके जैसे छात्र और निकलें। समाज के जो वंचित वर्ग हैं जिन्हें रिसोर्सेस नहीं है उन्हें भी आगे लाने का कार्य करें। जिस तरीके से मैंने लास्ट ईयर कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाइक की एक यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर की यात्रा की, दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा। दिव्यांगों में गांव देहातों में बहुत टैलेंट है बट उनके अंदर एक रास्ता नहीं है, एक सोच नहीं है, एक जुनून नहीं है, उन्हें कोई दिखाने का रास्ता नहीं है। हम और आपकी जवाबदारी बनती है कि हम, कोई भी दिव्यांग हो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उस रिसोर्सेस का जब हम बेनिफिट दूसरों को बताएंगे तो हमें बहुत ही, हमें खुद को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मगर बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर सभी काफ़ी अनुभव व्यक्ति बैठे हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्ति का कोई सपोर्ट करता है ना तो ऐसा लगता है कि हम भगवान से मिलने के लिए इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कि भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा हमारा। दया के भावना से नहीं, ये समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है सहायता करना। मगर मन में ये रहता है कि दिव्यांग को हम सहारा देंगे, हम खाना देंगे तो हमको भगवान कुछ देगा, ऐसा नहीं है। हम जिस लायक बनाए हैं हमें वो दे या ना दे, हमें अपना कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कार्य सही करता है तो सफलता और असफलता ये मैटर नहीं करती, वो आगे, उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसे इतना आगे ले जाती है कि उसे खुद ही नहीं पता। खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा तेरे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। हम पहले से पूछ लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो हमको ये मिलेगा। हमें कभी भी अपना कार्य करना चाहिए, ये हमें कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमें इनसे ये रिटर्न में मिलेगा। जब व्यक्ति अपना कार्य सही करता है, सिद्धांत सही करता है, जब डिटर्मिनेशन रहता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, बहुत से लोग आपके आसपास भी कि आप क्या कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे, हंसी मजाक करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, अगर उसके कार्य, सिद्धांत और समर्पण अगर सही तरीके से वो देश समाज के लिए कार्य कर रहा है तो आने वाले समय में उसकी जो बुराई करते थे वो भी
उसकी तारीफ करते हैं। ये मैंने अपने आप से ये अपने आप से ये मेरे जीवन में ये फील हुआ है जब मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। और समाज में हमेशा ये सोचिए, कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, बहुत से लोग आते हैं कि मैंने उसने ये किया, उसने ये किया। अरे जीवन में हमने क्या किया है वो बताना चाहिए, तब मोटिवेशन मिलता है। हम कितना भी मोटिवेट करें, कैसे कहते हैं, बेंगलोर से यहाँ गांव में दुनिया में कोई कितना भी मोटिवेट करे, कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, मगर मैं कहता हूं जब तक कितनी भी दुनिया में आंधी तूफान आए, जब तक आपकी खुद की साइकिल में हवा नहीं है, तब तक यहाँ से स्टैंड तक नहीं पहुँच पाओगे। कितने भी लोग कार से जाएं, हमें अपने अंदर जज्बा, जुनून और उम्मीद करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इतना ही कहता हुआ, आपने सभी ने अच्छी तरीके से मेरे को ध्यानपूर्वक सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी छात्रों को जो मेरे थॉट्स हैं, उम्मीद नहीं, आशा है कि आपको जीवन में ज़रूर कार्य आएंगे और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। ऐसी उम्मीद करते रहिए, आप आगे बढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मेरे को इनवाइट किया इस RNS MBA कॉलेज, इसके लिए भी मैं धन्यवाद। हमेशा मेरा कार्य रहता है कि लोगों से जुड़ें, पीपुल कनेक्टिव करें। जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो देश का विकास होता है। लास्ट में दो लाइनें, एक कविता कहूँगा, उसके पहले कहता हूँ कि जिंदगी अगर युद्ध बनाकर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूँ, लड़कर डरकर संग कर लूँगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बनाकर दी तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा। अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूँगा, अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूँगा। हरिवंश राय जी की मेरे को एक कविता बहुत मोटिवेट करती है, वो भी मैं बच्चों को बताता हूँ। मुट्ठी में सपने लेकर भर कर जेबों में आशा है, दिल में कुछ अरमान है, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तो तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने में तो मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं हूं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पर पला बड़ा हूं, मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं हूं तो मुझको कब तक मिटोगे। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथ स्वयं रचा है, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हालातों की भट्टी में कब कब झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। देश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब दिव्यांगजनों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया बाइक से कन्याकुमारी से दिव्यांगजन सशक्तिकरण खेलो यात्रा के अपने संकल्प को सिद्ध करने निकले हैं। देश की ऐसी पहली बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होगी जो उनके द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि भारत के हर क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर दिव्यांगजनों को खेलों से जोड़ना और उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, इसको अपने समता और सम्मान के प्रति जागरूक करना। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया की इस यात्रा की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से कन्याकुमारी से हुई है, जो देश के विभिन्न राज्यों से गुजरती हुई 1 मई को कश्मीर पहुंचेगी। इस दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा का एक ही मकसद है कि दिव्यांग व्यक्तियों को इस खेलों से जोड़ना और उनका पूरी तरीके से अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ना। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 24 जून साल 2018 को 12 घंटे 24 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया था। इसके बाद उनका नाम एशियाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद अमेरिका में 18 अगस्त 2019 को 11 घंटे 34 मिनट में कैटरीना चैनल पार किया और वो पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए।
श्री लोहिया ने देश के लिए अभी तक 28 राष्ट्रीय और 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके हौसले की सराहना कर चुके हैं। साल 2014 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 को पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया। साल 2020 में देश में पहली बार किसी दिव्यांग तैराक को राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने देश का प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। Thank you, sir. Nothing less than a standing ovation to the exemplary journey of Shri Satyendra Singh Lohia ji. One that of inspiration, one that of grit, of courage and determination, and an example to all of us as to how to turn our adversities into potential opportunities and succeed in lives. Thank you so much, sir, for that remarkable address.